We have already given the direction to all the district administration, all the deputy commissioners to crack down wherever they khapang ni tahuk te bukjong naro nugunya mangkhana je Meghalaya ni tini haina hai kokton kasai phaika tini Meghalaya ba haina hai fatar haste ni phainai Bangladeshi rokno rohor jangna ni bagai 30 din ni bisingo abono tui tini salai tongkha genaro saina mangkhana first no nugunya mangkhana kokno tui no norok ni bwskango ang sanane hinai tini kisisa kok tui phaika khajani tahuk te bukjong norok nugunya mangkhana hingke o je omo hai engui tongmani jagao sini Tripura o ni bagui tamo step nahajak tong sini jara je sini main government no asugui tongnai rok sini minister ungthong je kono ungthong jara kotor ungui tongnai rok tamo wansugui tong saimanya angke kajani tahukte bukjong norok comment sahardi hingke tabok haina hai norok phunukphinai Supreme Court ni koktun nobo kisisa norok nainedi tamo hani saitong norok ang phunuknai tini belai kheno khatung khaja angjangnai kokno o jarao sini Tripura ni bagui bo song joto Tripura sa jara je MLS ungthong minister ungthong joto thamsa khlai abono kaham khlai saitong mani ungthong hnai ang khayo angke first time norok omono koimung sini sar tei kotor tongnai rok norok kisa kaham khlai saitoke belai kheno sanai hini wansugo tini Supreme Court ni hoite tini kwbang mano saitong norok nugui no mangkhana tini saitong mani joto jagani bagui no tei sini Tripura rajyo ni bagui bo songo saitongo hingke norok jara je Tripura o tongnai tini sini jara je government asugui tongnai borok tamo khlaiya aboto saimanya phiaba tini nukjagui no tongkha kwbangma jagao no joto jagao no tini illegal immigrants no rohornani bagui tini joto no saitong laijak hingke tini ni bagui norok no ang o koktun rohormani norok saina mangkhana hingke tamo hini saka norok kisisa khnaini di Supreme Court ni hoite tamo hini saka hingke jotono hambai tini ni bagui next video nainani bagui norok subscribe tei like kiri norok ni bagui video tebo kaham tui manani bagui norok support and help khlaidi hingke tini bagasino jotono hambai. We have already given the direction to all the district administration, all the deputy commissioners to crack down wherever they suspect or wherever they receive inputs that they should be arrested immediately. District task force that we already have, the district task force about this finding out people who comes to the state, who stays in different district. That district task force is already there under the MRSSA Act, which was passed then, and even this district task force is operationalized, and we do have this district task force. But as far as the illegal foreign migration is concerned, we already directed all the district magistrate and the DCs to crack this and put this. नहीं है, इसलिए कोई भी किसी भी जिले की पुलिस घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए नहीं लगा रही है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि वो देश के सभी डीजीपी को, सभी चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दें कि जो घुसपैठ कर रहे हैं, जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर एनएसए लगाए। घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसको कहते हैं यूएपीए। लेकिन इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ भी हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए किसी भी राज्य सरकार की, किसी भी जिले की पुलिस घुसपैठियों और उनके मददगारों पे यूएपीए नहीं लगा रही है। घुसपैठ अपने आप में एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास अपना कानून है। जैसे ये महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, कहीं गुंडा एक्ट है। सब अलग अलग राज्यों के पास अपना अलग अलग कानून है।
इसके अलावा ये जो नई भारतीय न्याय संहिता बनी है, BNS जो नई बनी है, इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए बाकायदा एक प्रावधान भी है। लेकिन भारत में कोई भी राज्य सरकार और किसी भी जिले की पुलिस घुसपैठियों और उनके मददगारों पे ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं लगा रही है। इसी तरीके से घुसपैठ अपने आप में एक वेजिंग वॉर है। 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ गए थे, इस समय इनकी जनसंख्या 6 करोड़ हो चुकी है। हर साल ये बच्चा पैदा कर रहे हैं। एक एक घुसपैठियों के 12 बच्चे, 14 बच्चे, 16 बच्चे हो रहे। देश की राजधानी सबसे बड़े घुसपैठ की राजधानी बन चुकी है। इस समय अगर आप क्षेत्र के हिसाब से देखिए तो सबसे ज़्यादा घुसपैठी अगर किसी एक राज्य में है तो वो दिल्ली में है। दुर्भाग्यवश चूंकि घुसपैठियों और उनके मददगारों पे न NSA लग रहा है, न UAPA लग रहा है, न वेजिंग वॉर लग रही है, न देशद्रोह लग रहा है, न गैंगस्टर एक्ट लग रहा है, इसलिए न घुसपैठियों के मन में खौफ है, न उनके मददगारों के मन में खौफ है। अभी भी धड़ाधड़ वो डॉक्यूमेंट बनवाते जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ NSA, UAPA, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाने का निर्देश दें। घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का निर्देश दें और घुसपैठियों और उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें। ऐसे तारीख पे तारीख चलती रहेगी, 10 साल 20 साल मुकदमा चलता रहेगा। इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि कोर्ट में जाके 10 बार गवाही दे, थाने में जाके 10 बार गवाही दे। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो कानून है ना, भारतीय साक्ष्य संहिता, इसमें बदलाव की ज़रूरत है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी करने की ज़रूरत है। झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करने की जरूरत है। ये जो घुसपैठिए है ना, ये 20-20, 30-30 हज़ार रुपये में गवाह खरीद लेते हैं और 20,000, 30,000 रुपये में 10 गवाह, 20 गवाह अपने पक्ष में खड़ा कर लेते हैं और फिर पता चला इनके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आता और बाद में सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। पुलिस भी परेशान हो जाती है इनके खिलाफ गवाही इकट्ठा करने में। पुलिस भी परेशान है, गवाही देने वाले भी परेशान है। इसलिए अब समय आ चुका है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा हूँ, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करें। संविधान ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत शक्ति दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्ति है कि वो राष्ट्रपति को भी कह सकते हैं 3 महीने के अंदर बिल पे सिग्नेचर करिए। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्ति है कि वो वर्तमान कानूनों को ख़त्म भी कर सकते हैं और जहां कानून नहीं है वहां अपने आर्टिकल 142 की शक्ति का उपयोग करके अपनी नई गाइडलाइन भी बना सकते हैं। अब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा हूं कि घुसपैठियों और उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश दें, जिससे इनको जल्दी से जल्दी सजा दी जा सके। घुसपैठियों पे पूरे देश में एक समान कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका कारण है 1861 का पुलिस एक्ट। ये इस पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम बनी है। अब उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पे कार्रवाई हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, लेकिन बंगाल में नहीं हो रही है, केरल में नहीं हो रही है, तमिलनाडु में नहीं हो रही है, भारत के हिमाचल में इस समय नहीं हो रही है। डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है, फिर भी पुलिस हर जगह घुसपैठियों पे एक समान कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि ये 1861 का जो पुलिस एक्ट है, इसने पुलिस को सत्ता का गुलाम बना के रखा हुआ है। अब समय आ गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पुलिस रिफॉर्म के ऊपर डिटेल्ड गाइडलाइन बनाए, एक नया पुलिस चार्टर लागू करने के लिए निर्देश दे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्ति है कि जब तक सरकार नया कानून नहीं बनाती है, तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट पुलिस रिफॉर्म के लिए गाइडलाइन इशू कर सकते हैं। पुलिस